So there's the beautiful words about how mind is very important in our lives. It plays a very important role for all of us. For man, mind is the cause of bondage and mind is the cause of liberation. Mind absorbed in sense object is the cause of bondage, and mind detached from the sense object is the cause of liberation. Now, this verse is taken from Brahmabindu Upanishad, which is also referred to as Amrit Bindu Upanishad. The scripture teaches us about the workings of the mind and the nature of the Brahman. As with all other scriptures also, this is the case. So we are going to learn about mind according to science. Now, according to science, mind also plays an important and central role in human life. Mind is the reason why we feel certain things, why we feel the sensations, how we perceive, how our memory works. Everything is done by mind. But according to science, mind includes only two mental processes. One is the conscious process, through which an individual is aware of external and internal circumstances, and the unconscious process, which can influence an individual without intention or awareness. And the evolution of mind, according to science, happens only in terms of natural selection. So when it is beneficial to survival or reproduction, then only the evolution of mind will happen. And it is a very powerful tool according to science also, because it can be the cause of various diseases and can also be the cure of various diseases. Now we will learn about mind according to our ancient scriptures. So the first mention of mind in our scriptures is found in Rig Veda, which was more than 1,000 years ago. The concept of mind is also divided here. It is divided into epistemology, psychology, and philosophy. And the functions of mind are same because it also perceives and makes impressions and stores those impressions. It also helps to function the sense organs and the organs of action. So the mind is called the internal instrument or the antakarna, and the organs of action and sense organs are called the external instruments or the bhyakarna. Now only mind has the ability to travel to the past, present, or future. Now this is according to Aitareya Upanishad, which gives us 16 dimensions of mind, or the characteristics or the powers of the psyche. So I will read them out. First is the samjnana, awareness, which is the process of cognition or perception. Second is the ajnana, or the state of not knowing. It is comprehension. Third is the vijnana, or science or understanding. Fourth is the prajnana, or the knowledge, profound wisdom. Fifth is the meda, or retentiveness, the power to retain information or experiences. Sixth is the drishti, or the insight, the power of seeing or intuition. Seventh is the dhriti, or the resolution, the determination or firmness of purpose. Eighth is the mati, or opinion. It is the personal viewpoint or belief or intelligence. Ninth is the smriti, memory. It is the recollection of past experiences. 10th is the manisha, or reflection, thoughtful contemplation. 11th is the juti, or impulse. It is the spontaneous urge or inclination. 12th is the sankalpa, will. It is the volitional intention or resolve. 13th is the krita, or purpose. That is the goal or objective, or manurat shakti. 14th is the asuha, or life. That is the vital force, or prana shakti. 15th is kama, or desire. That is the craving or longing. 16 is vash, or control, mastery over one's minds and actions. Now these all things, all the dimensions of mind and the powers of the mind are which make the human mind different from other animals. Now mind according to Ayurveda. According to Ayurveda, it is divided into three. These are, first is the, that refers to the intellect. So this is our power of reasoning or understanding. Second is dhriti, that's the courage or the power of firmness. So, and this works between the and smriti. Third is the smriti, that refers to memory
or to ability to recall information. Now, so there are certain properties according to Ayurveda. Properties of the mind are, there are two properties. First is anu, the subtleness. The mind is the subtlest organ. So we cannot actually see it, or we cannot give a physical form to it. We can only perceive it through our functions and our senses. So this is the reason it cannot be given a physical structure. Second is the oneness. So mind is only one in an individual. The psyche may differ, or the qualities may differ, or the perception may differ in one person, but there is only one mind. The mind is person specific and only one. It can unite with only one sense organ at a time. So these are two properties. The states of mind or the fluctuations, which are also called as vrittis according to Maharishi Patanjali. First is the pramana. This is the valid knowledge of the right knowledge. This has three aspects. First is pratyaksha, that is direct perception. Second is anumana, that is the conclusion drawn through inference. Second is agam, authoritative evidence. Second is vipraya. Vipraya is the incorrect knowledge or the false knowledge. Third is the vikalpa. Vikalp refers to fantasy or imagination. Fourth is nidra. Nidra signifies deep sleep. And fifth is the smriti. Smriti again denotes recollection or memory. So all these play a very crucial role in our perception and understanding. Now, according to Mandukya Upanishad, there are 4 states of mind. First is the waking state, the Jagrat. So this is our everyday conscious state where we correspond to the it corresponds to the physical body and the gross level of reality. We engage in daily activities. Second is the swapna or the dream state. So during sleep, our mind creates a dream filled with various experiences. So this is more subtle than the waking consciousness, but it is still connected to individual experiences. Third is the deep sleep state or the Sushupti stage. This is deep sleep, so there is no awareness of external world or dreams. The fourth one is the Turiya stage. Turiya transcends all 3 common states, and it is our inherent nature. And types of mind according to Maharishi Patanjali, also called as Chitta Bhumis. First is the shift mind. Shift is the monkey mind, where the mind is restless and scattered, so it is jumping from thought to thought. Second is the mood or the dull mind, which is sluggish, lacking clarity and enthusiasm. So it is very resistant to change. Third is the vikshipta or the distracted mind. So the mind is somewhat focused but can be easily distracted. Fourth is the ekagra. Ekagra is the one-pointed mind. In this state, mind becomes more concentrated. So the inner clarity emerges. Fifth is the niruddha. This is the highest state where all fluctuation cease, and this can lead to profound awareness and bliss. Now we'll learn about the mind-body complex. Mind-body complex according to Yoga Vasishtha. According to Yoga Vasishtha, there are 2 mind-body complexes. First is the Manorupi body. So this is the mind-formed body. So the mind here, this is the subtle form of existence, and the mind creates a body through thoughts and desires and imagination. Our experiences and perceptions are shaped by this mental form. So this is how we perceive the world and ourselves also. So this is very illusory, or it is an illusion. It exists only in the mind. Second is the Deha-Rupa body, which is the physical body. This refers to our gross body, which is tangible and material in form, which is subject to birth, growth, decay, and death. So unlike the Manorupi body, this is not an illusion but a temporary vehicle for our consciousness. Now, mind-body complex according to all other ancient scriptures also, it is the same. We have 5 sheets or layers. First is the Annamaya Kosh, which needs food for its sustenance. Second is the Pranamaya Kosh, which animates the gross body and carries out all the functions for the gross body. Third is the Manomaya Kosh, which helps us to experience pain and pleasure and give rise to desires. Fourth is the Vijnanamaya Kosh,
which reflects the light of the cell and helps to judge and discriminate. Fifth is the Anandamay Kosh. This is the state of pleasure and rest. Then mind, body complex and diseases. So even science agrees that the definition of health should include the physical as well as the mental health. So it is a holistic scheme because mind influences the body and the body influences the mind. Mind with its creative potential and physical with its gross are the immaterial material continuum. So every disease has some sort of psychological factor as the causing agent, the etiological agent. Because we experience so many emotions and our mind is so fluctuating, so in some way it always gives rise to a physical disease. So psychological factors play etiological role for every physical illness. आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर हमेशा आपको पूछता है कि आप स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हो क्या, कुछ चेंज हुआ है क्या आपकी लाइफ में, या हमेशा एडवाइस करता है कि आप थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा घूम कर आइए, थोड़ा वॉकिंग पे जाइए, लोगों से मिलिए. दैट इज ऑल बिकॉज हाउ वी फील इज हाउ it reflects in the body and vice versa. So an individual's practice of social and moral values has a positive role on one's state of health. So body and mind are intricately linked and mutually influenced. So here the term comes mind over matter. Now what does mind over matter means? Mind over matter is when because we all know mind is more stronger than the body. So mind can always influence the body or the matter to overcome any physical circumstances. So if the body is diseased, it makes a person irritable or cripples or leads to depression. Same way, if the mind is ill, then it somewhere reflects in the body also. So here I have given some examples about mind over matter. These are very prevalent nowadays. First is the positive visualization, where when someone visualizes success or healing, it actually reflects in their physical world, actually comes out as the same. Second is the placebo effect. So यहाँ पे treatment का effectiveness जो है, you are not given the same treatment, but if it will reflect in your physical body, the physical changes will be seen without getting the treatment. That is the placebo effect. Third is the resilience and pain tolerance. So अगर आपका mind strong होगा, then you can endure any physical discomfort or pain. Fourth is the mind body practices. So we all teach techniques like meditation and yoga and mindfulness, which can increase the power of the mind. And if the mind is strong, it can positively impact health also and stress levels and our overall well-being. Now we see how the world is experienced. Actually, the world is within us because it is a thought modification. It appears outside of us because our senses perceive it and we attach our likes and dislikes to them. So thoughts arising are not actually binding us. They are just showing us. When we attach, when we identify with them, when we identify our happiness with them or our sorrows with them, that is when the bondage will happen. So यहाँ पे ये verses हैं from Yoga Vashishta that actually explain how we see the physical world, the side of us, to be the real world. So यहाँ पे उन्होंने example दिया है about the sky. जैसे हम sky में color देखते हैं, तो we see the sky as blue, but actually it's not blue. We can just see the blue color. The sky is colorless. Sky का कोई color नहीं है. Sky हमें सिर्फ ऐसे नजर आता है कि blue है. पर जब अगर ब्लू कलर से हट जाए और हमें उसमें कोई कलर ना दिखाई दे, तभी भी स्काई वहीं पर है. हमने सिर्फ सोचा कि स्काई ब्लू है तो हमें वैसे दिख रहा है वो. सो इट इज इल्यूजन एक्चुअली, वो जो हमें दिखता है ऐसे. यहाँ पे षड्दर्शनम का वर्स है, वो भी यही बताता है. द होल वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ 5 सेंस परसेप्शंस सच एज साउंड, साइट, टेस्ट, स्मेल एंड टच. The existence of these sensations is revealed by the corresponding thoughts. जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो वो हमारे सेंसरी इनपुट हमारे अंदर जाता है और एक थॉट आता है. वो थॉट से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और तब वो हमें
बॉन्ड कर लेता है, बाइंड कर लेता है। तो हम देखते हैं जो हमने 16 डिमेंशंस या पावर्स देखे थे, दे ऑल फॉल इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज मनः, अस्मिता और अहंकारा, एंड बुद्धि एंड चित्त. So we will just see about the characteristics and functions of them. तो जो मन है that processes the sensory information. जब भी आप कुछ चीज देखते हो या टेस्ट करते हो या छूते हो, तो एक सेंसरी इनपुट आपके माइंड के अंदर जाता है, जहां पर थॉट्स सबसे पहले बाहर आते हैं. पर ये बहुत डाउटफुल है, इनडिसाइसिव है और कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग है. Then is asmita. Asmita is the ego, which is very self-assertive and egoistic and has attachment to self. Third is the buddhi, that is the intellect. It is very determinative, discriminative, और जो डिसीजन मेकिंग यहीं पर होता है, इसीलिए क्लैरिटी ऑफ थॉट है इसके पास. देन इज चित्त. चित्त स्टोर्स द इंफॉर्मेशंस. सारे जो इंप्रेशंस और मेमोरीज जो फॉर्म होते हैं हमारे, दैट द चित्त स्टोर्स. सो ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, जो भी हमारा स्टोर्ड इंप्रेशंस या मेमोरीज है उनको रिफ्लेक्ट करेगा. Then what is the how is the process of sensory perception? तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है केक का. तो इमेजिन इफ यू सी अ डिलीशियस पीस ऑफ केक. तो मन क्या करता है, तो पहले आपने एक डिलीशियस पीस ऑफ केक देखा. जब आपने केक देखा तो एक सेंसरी इनपुट आपकी आंखों से वो एक अंदर गया, तो मन में एक थॉट अराइज होता है. मन में थॉट अराइज हुआ तो एक डिजायर आया. जब डिजायर आता है तो उसके बाद में वो थॉट जो है वो बुद्धि में जाता है. तो बुद्धि अब उसको इवेल्युएट करेगा. जैसे अगर आप डाइट पे हो या आप हेल्थ कॉन्शियस हो, तो वो उसकी तरफ जाएगा. या फिर वो, अगर आपको केक बहुत पसंद है तो वो उसकी तरफ भागने का कोशिश करेगा. तो यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग होगा कि आपको खाना है या नहीं खाना है. देन वो थॉट अस्मिता में जाएगा. जैसे आप रिलेट करोगे अपने आप को उससे कि आई डिजर्व दिस ट्रीट, या आई ऑलवेज हैव डिजर्व आफ्टर डिनर, मुझे बहुत केक पसंद है. तो ये सब जो थॉट्स हैं ये आपके सेल्फ इमेज के थॉट्स हैं और ये अस्मिता में आएंगे आपके. और उसके बाद में वो चित्त में जाएगा. तो चित्त जो है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को या मेमोरीज को स्टोर करता है. तो जो भी आपका फ्यूचर रिएक्शन होगा वो इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है. तो ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा वो चीजों को. और उसके बाद में in the chest. हाँ, हेलो. No, you carry on. अच्छा. हमारी चित्त में जो भी स्टोर है अभी तक, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस या मेमोरीज हैं, उनको रिफ्लेक्ट करेगा केक को लेकर. और अगर आपको केक बहुत पसंद है तो आप उसको डिसाइड करोगे खाने का. अगर आपकी बुद्धि ने डिसाइड किया कि मुझे खाना है, तो वो जो ऑलरेडी फॉर्म्ड संस्कार है, जो ऑलरेडी फॉर्म्ड आपका मेमोरी है, वो वापस से रीइंफोर्स हो जाएगा कि मैं केक हमेशा खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है. और अगर आप अब हेल्थ कॉन्शियस हो, आपने अपना हैबिट्स चेंज किया है, आप हेल्थ कॉन्शियस हो और आपने सेल्फ कंट्रोल दिखाया, तो एक नया मेमोरी फॉर्म होगा, जो वो नया संस्कार बन के आपके चित्त में स्टोर हो जाएगा. और आगे से ये संस्कार भी रिफ्लेक्ट होगा आपके डिसीजन मेकिंग में. तो दिस इज द साइकिल ऑफ सेंसरी इनपुट एंड थॉट जनरेशन. और वहाँ पे इवैल्यूएशन, सेल्फ आइडेंटिटी और इंप्रेशन फॉर्मेशन, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है हमारा हर सेंस ऑर्गन के साथ में. नाउ व्हाट इज बॉन्डेज? तो बॉन्डेज जो होता है, दैट इज द रॉन्ग नॉलेज. जब हम बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं अंदर की चीजों से. हम सिर्फ बाहर देखते हैं, हमारे डिजायर्स आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं माइंड में, और जितना हम वो थॉट को सोचते हैं उतना वो स्ट्रांग होते जाता है. सपोज आपने, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, और अगर आप उसको हर बार सोचते रहोगे, मे भी छोटी सी चीज भी बोली हो, अगर आप उसको बार बार वो थॉट को रिपीट करते रहोगे अपने माइंड में कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, तो वो उतना ही स्ट्रांग होकर हमें फिर परेशान करता है. तो हमारा माइंड उससे खराब हो जाएगा. और हम अपना लाइक्स और डिसलाइक्स उन्हीं चीजों पर हम सुपर इम्पोज करते हैं. अगर हम बाहर का जो भी हमारा थॉट्स आ रहा है, जो हम बाहर देख रहे हैं, उन पे हम अपना लाइक्स और डिसलाइक्स करते हैं, जिनसे हमारा जॉयज एंड सॉरोज भी आता है. अगर हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वहां पे हम दुखी हो जाते हैं. तो हमारा माइंड जो है वो
उन चीजों पर डिपेंड करता है। नाउ दिस इज द साइकिल ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पे आपका एक डिजायर आता है, आप डिजायर के लिए एक्शन लेते हो, काम आया, कर्म किया, कर्म का फल मिला, जैसे ही आपको फ्रूट ऑफ एक्शन मिला, आपका एक वो इंप्रेशन बन गया, एक मेमोरी बन गया, और जो वो मेमोरीज आपके ऐसे ही होंगे तो उसमें से और डिजायर निकल के आएंगे, क्योंकि डिजायर आर एंडलेस, वो कभी खत्म नहीं होते। आज सपोज आप आज एक फोन लोगे, एक और नया मॉडल आने वाला है, 2 दिन यूज करोगे, उसके बाद में आपको लगेगा कि अब मुझे नया मॉडल चाहिए, अब मुझे वो ज्यादा पसंद आ रहा है। तो डिजायर्स आर लाइक दैट। आज आपने कार लिया, कल आपको घर चाहिए, जब घर लिया तो आपको और बड़ा घर चाहिए। तो वी आर ऑलवेज कॉट इन नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ अटैचमेंट। तो यही हमें साइकिल ऑफ अटैचमेंट जो है भगवद गीता का वर्स बताता है। While contemplating on the objects of senses, one develops attachment to them. Attachment leads to desire, and from desire arises anger. Anger leads to clouding of judgment, which results in bewilderment of memory. When memory is bewildered, the intellect gets destroyed, and when the intellect is destroyed, one is ruined. तो यहाँ पे साइकिल ऑफ अटैचमेंट समझाया है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज कोई स्टूडेंट है जिसको कोई एग्जाम देना है, उस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी और एग्जाम देगी, अब उसको टॉप आना है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ वही एग्जाम की उसमें लग जाएगी, वो बाकी कुछ भी एंजॉय नहीं कर रही है, सिर्फ उसी में कर रही है। तो अब वो एग्जाम देगी, जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा और अगर रिजल्ट खराब आया तो फिर वहां पे एंगर आएगा ऑब्वियसली। जब एंगर आएगा तो वहां पे डिल्यूजन आएगा। डिल्यूजन यहाँ पे क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट हो जाएगा, अब उसको सही और गलत पहचान में नहीं आएगा। तो हो सकता है वो हमेशा डिप्रेशन में रहे, या वो हमेशा उसका मूड इरिटेटेड रहे। तो वहां पे जो भी मेमोरीज हैं वो खराब हो जाएंगी, एंड देन द इंटेलेक्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड, मतलब बुद्धि नाश। तो उसको सही और गलत का समझ नहीं रहेगा, और उस वन इज रूइंड दैट वे। पतंजलि योग सूत्राणी में भी हमें यही बताया है, हाउ द क्लेशास आर द कॉजेस ऑफ आवर सफरिंग एंड बॉन्डेज। So first is avidya, that is the ignorance. This is the root klesha, because everything, all our suffering and bondage arises from our wrong knowledge or the ignorance. Then this asmita. Asmita again is the identification of self with the ego. Then rag. Rag is attachment to pleasurable experiences. मतलब जब हम सिर्फ जो अच्छी चीजें लग रही हैं उनके पीछे भागते हैं, that is rag. And द्वेषा, जब हम अवॉइड करते हैं पेनफुल एक्सपीरियंसेस। सपोज हमें कुछ अचीव करना है, उसके लिए हार्ड वर्क करना है, तो हम उसको अवॉइड करने लगेंगे, तो वो भी हमारे सफरिंग का कारण है। देन इज अभिनिवेश, द फियर ऑफ डेथ एंड क्लिंगिंग टू लाइफ। देन व्हाट इज ट्रू नॉलेज? सो अकॉर्डिंग टू ऑल आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, द ट्रू नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। जब हम आई को अपने लोएस्ट फॉर्म में परसीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल थॉट्स, then it has reached its self atman, and this frees one from the cycle of birth and death. So this is our intrinsic nature, जो हमारा नेचर है, जो प्योर नेचर है, वो ऐसा ही है। जब हम अटैचमेंट में आ जाते हैं या बॉन्डेज में आते हैं, तब हम इससे भटक जाते हैं। So the true knowledge is explained here, how we can realize this. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है शिव दर्शनम में अबाउट गोल्डन ऑर्नामेंट्स। तो जैसे गोल्डन ऑर्नामेंट्स होते हैं, एक नेकलेस होता है, एक बैंगल होता है, एक मांगटिका है, सपोज पायल है, तो उनको सबको अलग अलग शेप और फॉर्म्स और नेम्स दिए हुए हैं हमने, कि ये नेकलेस है, ये बैंगल है, ये मांगटिका है। पर अगर सपोज उनका रियलिटी देखें, अगर हम उनको सबको इकट्ठा करके अगर हम उसको मेल्ट कर दें, तो वो गोल्ड ही है, गोल्ड के अलावा उनका कोई रियलिटी नहीं है। सेम वे हमारे हमारे ऊपर भी वो अप्लाई होता है। जैसे अगर हम सबको हमने शेप और फॉर्म्स और नेम्स दिए हुए हैं, पर एक्चुअली में देखें तो सिर्फ एक ही इटर्नल कॉन्शियसनेस है, उसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। यहाँ पे भी इस वर्ड्स में भी सेम चीज बताया है कि सपोज अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट अपने सामने देख रही हूँ, सपोज अगर मैं ये लैपटॉप देख रही हूँ, तो ये लैपटॉप ऑब्जेक्ट हो गया, और मेरी आई जो देख रही है, मेरी आंखें जो देख रही हैं, वो सब्जेक्ट है। सेम वे अगर मेरी आंखों को कोई देख रहा है, मेरी आंखें मतलब मेरे मन जब मेरी आंखों को देख रहा है, तो मेरी आंखें ऑब्जेक्ट हो गई, और मेरा मन जो है, माइंड जो है, वो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो वो सब्जेक्ट हो गया।
सेम वे अगर हमारे मन को जो देख रहा है, जो हमारे मन को अंदर से कोई देख रहा है, तब वो एक्चुअली में साक्षी है, वो विटनेस है, दैट इज द ट्रू सेल्फ। तो वो जब हम समझ जाएंगे विच इज द ट्रू सेल्फ, देन वी विल रिसीव द ट्रू नॉलेज। नाउ व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू नो योरसेल्फ? जब हम अपने आप को जानेंगे तभी हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा, थॉट एंड माइंड। ठीक है, जब माइंड क्लियर हो जाएगा हमारा, तो जब हम जब बाहरी चीजों से भागना बंद कर देंगे, हम जब बाहर की चीजों पे नहीं भाग रहे हैं, जब हम अंदर अपने अंदर झांक रहे हैं, तब वो एक इनर पीस देगा। जब इनर पीस मिलेगा तो हम एक पीसफुल और सिंपल लाइफ जिएंगे। जब सिंपल लाइफ अब जब हम जीने लगेंगे, एथिकल जब जब जीने लगेंगे, तब हमें स्पिरिचुअल विजडम मिलेगा। स्पिरिचुअल विजडम ही है जो हमें अपने आप को पहचानने में मदद करेगा, which can lead to moksha. So now why is it so hard to know the true knowledge? अब इतना हार्ड क्यों होता है? Because every one of us is so busy. हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, एंडलेस डिजायर्स हैं। हमें कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है। एक्चुअली हमारा माइंड जो है वो ऑटो पायलट पे चल रहा है, इसलिए हमें इतना दुख मिलता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड इम्प्योर है। तो हमें अपने अंदर झांकने का टाइम ही नहीं है। जब हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो दीज आर ऑल द आई हैव लिस्टेड अ फ्यू योर इम्प्योर माइंड क्यों होता है या किससे होता है। द सेम वे हमें ये भगवत गीता का वर्स बताता है कि डिजायर्स हमारे ट्रू नॉलेज को कैसे ढक देता है। जस्ट एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, अ मिरर इज मास्क्ड बाय डस्ट, एंड एन एम्ब्रॉय इज कंसील्ड बाय द वूम, सिमिलरली वंस नॉलेज गेट्स श्राउडेड बाय डिजायर। क्योंकि हम बाहरी चीजों के पीछे इतना भाग रहे हैं, तो हमें हाँ अपने अंदर झांक ही नहीं रहे हैं। इसके लिए एक स्टोरी मैं समझाना चाहती हूँ। इसके स्टोरी के थ्रू एक राजा होता है, एक राजा रानी होते हैं जो सोचते हैं कि हम अपने महल में प्ले करना चाहते हैं एक नाटक। तो उसके लिए उनको एक लड़की चाहिए होती है परफॉर्म करने के लिए, पर उनका सिर्फ एक बेटा होता है, एक प्रिंस बेटा होता है। तो रानी काम करते हैं, हम अपने बेटे को ही बेटी की तरह सजा के और उससे नाटक करवाते हैं। तो रानी अपने बेटे को अच्छे से ड्रेसअप करके, पूरे लड़कियों के कपड़े पहना के सजा के उसे वो प्ले करवाती है। इतना अच्छा लगता है, तो उसने सोचा कि मुझे एक उसका पेंटिंग बनवाना है। तो वो पेंटिंग बनवा के रखवा लेती है। अब काफी साल गुजर जाते हैं, अब वो प्रिंस थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो वो एक दिन राजमहल में घूम रहा होता है। तो घूमते घूमते वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ पे वो पेंटिंग रखा हुआ होता है। तो वो उस पेंटिंग को देखता है और देखते ही उसको उससे प्यार हो जाता है। तो वो सोचता है ये लड़की से मुझे मिलना है। तो वो लड़की को मिलने के लिए वो पेंटिंग लेकर वो सब जगह पे घूमता है, पूरे अपने राज्य में सब जगह पे, ये कौन है लड़की, मुझे इससे मिलना है। वो इतना वो मिलने की डिजायर से इतना वो हो जाता है कि वो और कुछ सोचता ही नहीं है। जब वो थक हार के वापस जब राजमहल आता है, तब अपने मंत्री से जाके मिलता है और मंत्री को बोलता है कि मुझे ये लड़की से मिलना है, ये लड़की कौन है, इस लड़की को मिले बिना मैं नहीं रह सकता। तब उसका मंत्री उसको बताता है कि ये तो तुम ही हो, जब बचपन में तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे को ड्रेसअप किया था, तो ये तुम ही हो। तो जैसे उसका इग्नोरेंस, जैसे उसको पता चलता है कि ये मैं ही हूँ पेंटिंग में, तो उसका इग्नोरेंस जो है, उसका डिजायर जो है, वहीं पर ड्रॉप हो जाता है और उसको सही नॉलेज मिल जाता है। तो सेम वे हमारा भी जो ट्रू नॉलेज है वो हमारे डिजायर्स से ढका हुआ है। जब हमारे डिजायर्स ड्रॉप हो जाएंगे तो वो ट्रू नॉलेज बाहर आ जाएगा। नाउ हाउ कैन वी अचीव द ट्रू नॉलेज बाय यूजिंग द माइंड? तो हमें माइंड को एक टूल की तरह यूज करना है। वी हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल इट। वी हैव टू रिजेक्ट द सेंस ऑब्जेक्ट्स, and we have to keep right thinking and determination, attentive mind. Good actions will help to keep a clear mind, positive thought, and sattvic lifestyle. We can adopt any of the sadhanas, meditation or pranayama, puja, jap. ये सब क्या करेंगे? This will help us to achieve a clear mind, clarity of mind. जब माइंड क्लियर होगा, जब माइंड शांत होगा, तब हम आगे के लिए रेडी हो जाएंगे। So यहाँ पे ब्रह्मबिंदु उपनिषद का एक वर्स है, that tells us
जस्ट लाइक बटर इज हिडन द मिल्क, जैसे मिल्क होता है उसके अंदर बटर होता है पर वो ऊपर से दिखाई नहीं देता है हमें, तो हमें उसको क्या करना है, बटर को बाहर लाने के लिए एक चर्निंग रॉड लेकर हमें उसको मिल्क को चर्न करना है। जब हम चर्न करेंगे तो वो बटर अपने आप बाहर आ जाएगा। सेम वे अवेयरनेस हमारे सबके अंदर होता है पर वो अंदर छुपा हुआ है, तो उसको बाहर लाने के लिए हमें अपने मन को यूज करना है, अपने माइंड को यूज करना है। जब माइंड को यूज करेंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। सेम वे नारद भक्ति सूत्रा भी सेम चीज बताता है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, जब हम वी हैबिचुअली रिजॉर्ट टू अ सॉलिटरी प्लेस, अकेले में बैठकर बाहर की दुनिया से बॉन्डेज छोड़कर जब हम अपने आप अंदर झांकते हैं तब हमें वो ट्रू नॉलेज दिखाई देने लगता है। Now there are several pathways to follow if one wants to achieve moksha. यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़े से बताए हैं बिकॉज मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं उन सब पे ऑलरेडी सेशंस हो चुके हैं। So these are the recommended behaviors to purify the mind. तो उसमें पतंजलि योग सूत्राणी में हमें यम और नियम बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। ये यम है, नॉन वायलेंस, रियलिज्म, नॉन स्टीलिंग, सेक्सुअल नॉन एक्सप्रेसिवनेस एंड नॉन पोजेसिवनेस। एंड द नियम्स आर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधानी। प्यूरिफिकेशन, कंटेनमेंट, ऑस्टेरिटी एंड प्रोफाउंड रिलीजियस मेडिटेशन ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। तो इससे क्या होगा, हमारा माइंड जो है वो प्यूरिफाई होगा और हम आगे की साधना के लिए रेडी हो जाते हैं। नाउ डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर्स। तो जो हमारे जो यहाँ पे जो डिटैचमेंट जो बात करते हैं वो हमेशा ऐसा मीन नहीं करता है कि आपको हमेशा संन्यास लेके ही आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से जाना है। डिटैचमेंट सिर्फ इतना मतलब है कि जो आप किसी भी सिचुएशन में या किसी भी चीज में आप न्यूट्रल रहें, आपका माइंड जो है वो यहाँ वहां नहीं भटकना चाहिए। When there is neutrality in respect to influence of material nature, तो जब आपका माइंड जब स्थिर रहने लग गया, जब काम रहने लग गया, चाहे आपको कोई खुशी मिल रही है चाहे आपको कोई गम मिल रहा है, पर जब आप न्यूट्रल रहने लग गए उसमें, तब आपका डिटैचमेंट हो चुका है। तो डिटैचमेंट हमारे मन को शांत कर देगा और फिर से हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। गिविंग अप द सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये भी प्यूरिफाई करता है अपने माइंड को, बिकॉज अष्टवक्र गीता में बोला गया है कि अगर सेंस ऑब्जेक्ट से हम अटैच रहेंगे तो दे आर लाइक पॉइजन। तो हमें क्या करना है, फॉरगिवनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, काइंडनेस, कंटेनमेंट एंड ट्रूथ। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा मन शांत रहेगा, हमारे मन में और कोई विचार नहीं आएंगे, कुछ गिल्ट फील नहीं होगा, कुछ बुरे विचार नहीं आएंगे और हमारा मन शांत हो जाएगा आगे की साधना के लिए। सेम भी नारद भक्ति सूत्राणी में भी यही बोला है कि अगर हमें कोई और साधना नहीं मिली है या कंपनी ऑफ भक्तस नहीं मिला है तो हमें सबसे पहले अपना जो अटैचमेंट है ऑब्जेक्ट से वो ओवरकम करना है, क्योंकि हमें उसको बार बार अपने मन को वहीं पर लगाना है। जब वो वहां पर भगवान की इसमें लग जाएगा तब फिर हमें ट्रू नॉलेज मिलेगा। देन इज कर्म योगा। कर्म योगा में भी यही जो अपनी ड्यूटीज हैं, जब हम सबके लिए इम्पोर्टेंट एक्चुअली कर्म योगा, बिकॉज हम लोग सब लोग अपना ड्यूटीज कर रहे हैं। तो ड्यूटीज हमें कैसे करना है, इन एन एनलाइटेंड मैनर। एनलाइटेंड मैनर कैसा है, सपोज आप कोई भी एक्शन कर रहे हो तो आपको उस तरह से करना है जैसे आप भगवान को फूल या नैवेद्यम आप अर्पण करते हो। जब आप भगवान के चरणों में आप डाल देते हो तो वो आप अपने पूरे मन के साथ में, अपने पूरा 100% पूरे मन के साथ में आप उनको अर्पण करते हो। तो वैसे ही आपको अपना हर एक्शन करना है, हर एक्शन आपका 100% आपको देना है हर एक्शन में। और जो भी फ्रूट ऑफ एक्शन मिलेगा, जो कर्म फल मिलता है आपको, उससे मोस्टली अपना मन डिस्ट्रैक्ट होता है। तो वो हमें कैसे लेना है, जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमें अगर मंदिर या कहीं प्रसाद मिलता है कोई पूजा में, तो हमें चाहे वो प्रसाद पसंद हो या ना पसंद हो, हम फिर भी उसको उतने ही मन से खाते हैं जैसे जैसे हम जो पसंद है वो खाते हैं। तो वैसे ही हमको जो हमारा एक्शन का जो फ्रूट है वो जैसा भी मिले, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, हम उसी वे में लेंगे जैसे हमें कोई चीज पसंद है। Then is Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is also a complete self-surrender in every aspect of your life. तो हम भगवान में सब कुछ छोड़ देंगे, भगवान को सब कुछ अर्पण कर देंगे और इसीलिए वहां पे भी जो अपना मन है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि हमें और कोई थॉट्स नहीं आएंगे, बिकॉज हमने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है अब।
तो हमें कोई भी और थॉट डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा और हम आगे का अपना पाथ डिस्कवर कर सकते हैं. Then is yoga. Yoga is also yoga is a suppression of modifications of mind. तो यहाँ पे yoga is not only physical postures but actually about mastering the mind. तो उससे भी हमें inner peace मिलेगा, self awareness आएगा और हम आगे मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं. Then is Om meditation. ओम मेडिटेशन या आप मेडिटेशन ले सकते हैं या आप मंत्र मेडिटेशन ले सकते हैं. ओम यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे ओम का लिखा है. ओम इज द गॉड्स नेम एंड फॉर्म. सो आप उस पर मेडिटेट कर सकते हैं जिससे आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगेगा. देन इज जप साधना. तो यहाँ पे मैंने रामचरितमानस से दिया हुआ है. वाल्मीकि संत वाल्मीकि का लिखा हुआ है, जो एक्चुअली एक डेकॉइट थे, एक डाकू थे, जिन्होंने भगवान का नाम उल्टा लिया इन रिवर्स ऑर्डर. मरा मरा बोल के भी वो ब्रह्म को उन्होंने पा लिया. तो सेम वे अगर हम एक भगवान का नाम जपते हैं विद अवेयरनेस एंड विद फुल डिवोशन, तो हमें वो मोक्ष तक पहुंचा सकता है. द कंक्लूजन इज ओवरऑल एनी प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस यू चूज टू फॉलो. आप एक प्रैक्टिस आप चूज कर सकते हो या मल्टीपल प्रैक्टिसेस चूज कर सकते हो. ये सभी एक साथ मिलकर आपके माइंड को और आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, आपकी जो अटैचमेंट्स हैं उनको डिसॉल्व करते हैं और आपको मोक्ष की तरफ बढ़ने में हेल्प करते हैं. They create the necessary conditions for an individual to experience unity with the divine or higher reality. Thank you.